Hello students and welcome back. So today we are going to study the third chapter of class 12, that is current electricity. Before earlier in our first unit we were studying about the charges that were static. Suppose that this is some charge Q and this charge is not moving, it is just static. So the study of charges at rest or the charges those are static, that we called electrostatics. Now what we will do, we will move this charge from one place to another, or we will study the property of charges that are moving from one place to another place. So that study is known as current electricity. So this is current electricity. In our earlier classes, or most precisely we would say in class 10, we have studied that suppose this is some point A and this is some point B. Some charge is placed here and suppose this charge is Q. So what happens if this charge is allowed to move from point A to point B, and more precisely this charge is an electron. So what happens when this electron moves from point A to point B, the motion of the electron consists of current, while the motion of electron constitutes a current, and what will be the direction of current? Opposite to the motion of electrons. So when electrons are moving in one direction, then we can say that the current is flowing in the direction opposite to the direction of motion of electrons. So in this diagram, what will be the direction of current? The direction of current will be this one, from B to A. And what will be the direction of flow of electrons? From A to B. So the flow of electrons is known as electronic current. It constitutes electronic current, and the normal current that we study is known as conventional current. Conventional current, and the conventional current direction is just opposite to the direction of electronic current. So keep in mind. Now what happens? Now see, this is some charge and this charge is positive charge, and this positive charge is moving from point A to point B. वो एक पॉजिटिव चार्ज है जो पॉइंट A से पॉइंट B पर मूव कर रहा है. अब now tell me what will be the conventional current? The conventional current will be where the positive charge is moving. So this will be now the direction of conventional current. So basically the direction of conventional current is the direction of motion of protons, or the direction opposite to the motion of electrons. So keep it in mind. Now our first topic of this chapter is electric current, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया. इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन एग्जाम में आती है 1 मार्क और 2 मार्क. तो क्या होता है ये इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. सिंपल. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ charge is known as electric current. So when rate comes in some definition, then what does this mean? This means that the charge or the value related to rate has denominator time. So now we have charge, rate of flow of charge means charge divided by time. This gives us current. Now symbolically writing this, we have Q upon T, and current is denoted by capital I. So we can say that current is equal to charge per unit time. Now what will be the SI unit of current? SI unit of current, from this relation we can establish Q upon T. So what is the SI unit of charge? Coulomb. And SI unit of time is second. So SI unit of current can be coulomb per second, or in honor of scientist Ampere, who described us the current, flow of charges, flow of protons, and the direction of conventional current, we specify the SI unit of current as Ampere, which is denoted as capital I, capital A. So as हमने स्टडी कर लिया है,
about the direction of current, तो इसको फिर से एक बार हम देख लेते हैं, conventional current and electronic current. So suppose this is some charge plus Q, it is moving in this direction. Let's consider this point A and this point B. एक plus Q चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है जो point A से point B तक ट्रैवल कर रहा है, तो we will say this is the current. Which current? Conventional current, जिसको हम स्टडी करते हैं नॉर्मली घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है उसी को हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं. नाउ कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑल्सो मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. इस डायरेक्शन में करंट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. सो इलेक्ट्रॉन जब इस डायरेक्शन से इधर यहाँ मूव कर रहा है तो ए से बी की डायरेक्शन किसकी होगी? इलेक्ट्रॉनिक करंट. एंड कन्वेंशनल करंट क्या होगा? कन्वेंशनल करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक current. Now moving on, what type of quantity is a current? Current एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी है. क्या होगा ये? Since काफ़ी स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम इसके डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो करंट मस्ट बी अ वेक्टर क्वांटिटी, बट इट इज रॉन्ग. बिकॉज करंट को जब हम ऐड करते हैं, हमने अपने रेजिस्टेंसेस भी पढ़े हैं, क्लास 10th में हमने करंट को भी देखा है. तो करंट को हम किस तरह से ऐड करते हैं. सपोज 2 एम्पियर करंट हमारे पास प्रेजेंट है, 3 एम्पियर करंट प्रेजेंट है, 1 एम्पियर करंट प्रेजेंट है. एक वायर से अलग अलग पॉइंट्स पर ये करंट फ्लो है. तो टोटल करंट क्या होगा? व्हाट वी विल डू, विल सिंपली ऐड ऑल द मैग्नीट्यूड्स. सो वी गेट 6 एम्पियर ऑफ करंट. यहाँ पर हमने एक सिंपल अलजेब्रा से इसको ऐड किया है करंट को. यहाँ हमने कहीं भी वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर एडिशन, दो तरह के वेक्टर एडिशन होते हैं, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. यहाँ पर हमने कोई भी उस तरह का लॉ यूज नहीं किया, हमने सिंपली यहाँ पर ऐड किया है करंट को. सो फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट वी कैन कंक्लूड दैट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. Fine. Now, since we have studied about current, now we will study the important topic of this chapter, that is named in the honor of a scientist, Ohm. And that law is known as Ohm's law. Ohm's law के concept के ऊपर अपने पास क्लास 12th में प्रैक्टिकल भी है, ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट. तो ओम्स लॉ हम समझ लेते हैं क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है. ओम्स लॉ की डेफिनेशन विथ कॉन्सेप्ट एंड विथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन 2 मार्क्स की एग्जाम में आती है. तो क्या होता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference. Directly proportional to potential difference. So from here we can mathematically write that potential is directly proportional to current. Current जितना इंक्रीज होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? पोटेंशियल पर. दो पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, सपोज वी हैव पॉइंट ए एंड वी हैव पॉइंट बी, द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज वी ए एंड द पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज वी बी. इफ देयर एग्जिस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा बी, व्हाट विल बी डेल्टा बी? वी बी माइनस वी ए. अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, उसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट. सपोज पॉइंट ए के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, पॉइंट बी के ऊपर प्रेजेंट हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स का हमारे पास बी के पास प्रेजेंट है. तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? जिसके पास एक्सेस है जहाँ वहाँ से कम जगह, जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स है. तो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करेंगे वो करेंगे बी से ए पर. बी से ए पर जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, क्यों मूव किया? बिकॉज द मेन कॉन्सेप्ट इज कि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, उनकी जो एबिलिटी है स्टोर करने की वो इसके पास ज़्यादा है. तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसके पास, तो वो क्या करेगा?
उस अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी जगह फ्लो होने देगा बहुत इजीली। तो जब इस तरह का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, एंड जहाँ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो करंट फ्लो होता है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम ए टू बी। नाउ सेम चीज, पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ एग्जिस्ट करता है वहाँ करंट भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनल साइन को अगर हम हटाते हैं तो वी पुट एन इक्वल हियर एंड राइट करंट हियर। नाउ व्हेन वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनल साइन वी have to put a constant, and that constant is R, and this R is known as resistance. Now what is this thing resistance? Resistance को अगर हम देखते हैं तो ये resistance बना है word resist से, and resist का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रोकना या उसको फ्लो नहीं होने देना, किसी भी चीज को या किसी भी पर्सन को किसी काम करने से रोकना, दैट इज नोन एज रेजिस्ट। तो हमारे पास जो कंडक्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या करता है? कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने से रोकती है। सो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर दैट स्टॉप्स the conductor or stops the electrons to move within the conductor. So resistance को you can say property of conductor that resist the flow of current. Because flow of current क्या चीज है? Flow of current ही itself है motion of electrons. So हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गई प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस। अब इस R को इस इक्वेशन से हम इवेल्युएट कर सकते हैं। सो R कैन बी रिटन एज V/I, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल पर यूनिट current. Potential upon current gives us the property, the value of resistance of a conductor. Fine. So resistance की definition भी एग्जाम में आ सकती है। combined question अगर आता है Ohm's law resistance का तो 1 मार्क की resistance की definition with this expression आपको लिखनी होगी। Now what will be the SI unit of this R? R एक कांस्टेंट है लेकिन स्टिल उसकी SI यूनिट भी एग्जिस्ट करती होगी। तो फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन एस्टैब्लिश द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। व्हाट विल बी द SI यूनिट? द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट, SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, सो दिस विल बी वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को कंबाइन करके हमने रेजिस्टेंस की एक यूनिट निकाली थी और रेजिस्टेंस की उस यूनिट को हम बोलते हैं ओम, which is denoted by this Greek symbol. This Greek symbol is known as omega, but we call it as ohm. Fine. We symbolize ohm as this Greek symbol omega. So SI unit of resistance is ohm. Fine. Now moving on. Factors on which resistance depends. Factors on which resistance depends. The factors affecting resistance R. तो ये जो रेजिस्टेंस होता है वो ये किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है और उस कंडक्टर की कुछ ऐसे फैक्टर्स जो इस R को चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज हैं नंबर 1 लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करेगी R की वैल्यू। तो resistance is directly proportional to length. How? If this is some conductor of some given length, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे? एक स्पेस में अरेंज्ड होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब स्पेस में अरेंज्ड है एट सम रूम टेम्परेचर ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये अपने ही इसी विद इन दिस लेंथ ही मूव करेंगे। जब ये मूव करेंगे तो ये क्या होगा? एक दूसरे के साथ कोलाइड होने लग जाएंगे, और जब ये एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे और इसके अंदर प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट हैं उनके साथ भी कोलाइड होंगे, तो धीरे धीरे ये क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। और जब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या होगा? करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि जब एक दूसरे को प्रोटॉन्स के साथ मिलके कैंसिल आउट करेंगे तो
इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जब जीरो हो जाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, बिकॉज करंट जब मूव करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट नहीं है तो करंट भी नहीं होगा, करंट नहीं होगा तो कहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, लेंथ को और इंक्रीज कर देते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा और इसको इंक्रीज कर दिया। जब हम इसको और इंक्रीज कर देंगे तो लेंथ को कैसे इंक्रीज करेंगे, या तो उसको और बड़ा कर देंगे, इस वायर को जब इसको स्ट्रेच करेंगे वायर को, तो इलेक्ट्रॉन्स और अपनी स्पेस में बढ़ जाएंगे, और जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उनके पास और जगह होगी मूव करने की, और मूव करेंगे और प्रोटॉन्स के साथ ये कोलाइड करेंगे, और इस तरह से क्या होगा, ये कोलाइड करते करते रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। नाउ रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड ऑन द एरिया बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया जितना इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। हाउ, दिस इज सम शीट। इस शीट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और ये रैंडमली मूव कर रहे हैं अपनी ही जगह पर। जब ये अपनी जगह पर मूव कर रहे हैं तो बहुत इजीली ये एक दूसरे के साथ मूव करते हैं, कोलाइड होते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस इसके अंदर प्रोवाइडेड है। अब हम क्या करेंगे, इसके एरिया को इंक्रीज कर देंगे। जब हम एरिया को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इनको ज़्यादा जगह मिल गई तो ये अपने एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, तो इनका कोलिजन जो होता है वो कोलिजन कैसा हो जाएगा, कोलिजन, ये जब अपनी जगह में फैल गए तो एरिया इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्टेंस है एक दूसरे से वो इंक्रीज हो गई। एरिया जब इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब वो एक दूसरे से कोलाइड ही नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन वैनिश नहीं होंगे, तो वो रैंडमली अपनी जगह पर मूव करते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो कंडक्ट होता रहेगा, और जब मोशन कंडक्ट होगा तो करंट भी होगा, और ये रेजिस्टेंस क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ये रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अगर रेजिस्टेंस कम होगा अगर एरिया ज़्यादा है, और अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। एंड नाउ इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। किस तरह का मटेरियल है उस पर भी डिपेंड करती है आर की वैल्यू। फाइन, नाउ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी। अगर हमारे पास कॉपर प्रेजेंट है और एक हमारे पास प्रेजेंट है प्लास्टिक, कॉपर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक के पास तो होता ही नहीं बिकॉज ये कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, तो सिंपली रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। तो इन दोनों चीज़ों को जब हम कंबाइन करते हैं वी हैव एल अपॉन ए। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते हैं तो R इज इक्वल टू एल अपॉन ए। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो एक कांस्टेंट प्लेस करेंगे, ये कांस्टेंट इसको हम बोलते हैं रो, RH O, और रो को स्पेसिफाई किया जाता है एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रो को हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं R A अपॉन L। सो रो का ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया डिवाइडेड बाय length of the conductor. Now from this relation can you say that specific resistance depends on resistance, area and length? इस specific resistance को हम short में बोलते हैं resistivity, means ये resistance की property होती है। तो इस रिलेशन से हम इजीली बोल सकते हैं, क्योंकि जब हमने ये वैल्यू स्टैब्लिश की थी R की तो हम ये बोल रहे थे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, L R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। नाउ यहीं से हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया तो हम भी ये बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A और रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, बट दिस इज रॉन्ग। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन एनी ऑफ द वैल्यू। रेजिस्टिविटी इज अ कॉन्स्टेंट थिंग एंड हर कंडक्टर के लिए या हर मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू कांस्टेंट है एट सम फिक्स्ड टेम्परेचर। तो ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस एंड इवन ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सो रेजिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट थिंग। आप कितना भी एरिया इंक्रीज करो, कितना भी लेंथ इंक्रीज करो, कितना भी रेजिस्टेंस इंक्रीज करो, रेजिस्टिविटी की वैल्यू ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। फाइन, नाउ चलो ये तो हो गई इसकी बात कि ये किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। व्हाट विल बी द एसआई यूनिट? एसआई यूनिट विल बी, यहीं से निकाल लेते हैं, R की एसआई यूनिट होती है ओम,
एरिया की SI यूनिट होती है मीटर, लेंथ की SI यूनिट क्या होती है मीटर, यहाँ से मीटर ही कैंसर, सो द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ऑलवेज रिमेंबर, ये क्वेश्चन रेजिस्टिविटी का एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है, तो प्लीज मेक श्योर टू अंडरस्टैंड दिस। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में काफ़ी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे कि रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस और लेंथ और एरिया के साथ उनका रिलेशन। सो नाउ वी विल सी अगेन ओम्स लॉ, V is directly proportional to I. What does this mean? This means that जितना पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे उतना ही करंट इंक्रीज होगा। अगर इसको हम ग्राफिकली देखते हैं तो एक एक्सिस पर हम पोटेंशियल ले लेते हैं ऑन एक्स एक्सिस, एंड वाई एक्सिस पर हम कंसिडर कर लेते हैं करंट को। तो हम पोटेंशियल को जितना इंक्रीज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही करंट हर बार इंक्रीज होगा। सपोज पोटेंशियल अगर 1 वोल्ट है तो उसके अकॉर्डिंग 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। लेट्स ड्रॉ इट हियर। इफ पोटेंशियल इज इंक्रीज टू 2 वोल्ट, द करंट इंक्रीजेज टू 2 एम्पियर, सो हियर इट कम्स 3 वोल्ट, 3 एम्पियर, 4 वोल्ट, 4 एम्पियर। मैं जो एक एक करके यूनिट बढ़ाती जा रही हूँ, इट डजेंट मीन कि हर बार एक जैसा होता है, बट यही कॉन्सेप्ट है कि उसके अकॉर्डिंगली ही चेंज होता है। तो जब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज द ट्रेडमार्क ऑफ ओम्स लॉ। फॉर एवरी ओम्स लॉ दिस line or VI curve is always a straight line. Fine. So this is the characteristic of Ohm's law and this is the VI curve for Ohm's law. अब हम करते हैं प्रैक्टिकल की बात। अपने प्रैक्टिकल्स में हम क्या करते हैं, ओम्स लॉ स्टैब्लिश करते हैं। हाउ डज वी स्टैब्लिश ओम्स लॉ? हम एक वायर कंसिडर करेंगे अननोन रेजिस्टेंस का, और उस वायर में हम क्या करेंगे, करंट फ्लो कराएंगे। हम एक बैटरी से इसको कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमने की स्टैब्लिश कर दी, करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, इस वायर से भी फ्लो होगा करंट। अब हम क्या करेंगे, जो बैटरी होती है उस बैटरी में हमारे पास पोटेंशियल को चेंज करने के लिए नॉब्स होते हैं। सपोज इनिशियली हमने 2 वोल्ट बैटरी का नॉब ले लिया और 2 वोल्ट हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 2 वोल्ट के अकॉर्डिंग ना करंट फ्लो हो रहा है, और ये करंट एक सर्टेन वायर से होता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर करंट हम कंसिडर कर लेते हैं, 2 एम्पियर करंट आ गया, फाइन। उसके बाद आप पोटेंशियल को अगेन 4 वोल्ट कर देते हैं, तो जब हमने इसको 4 वोल्ट किया तो करंट हो गया सपोज 4 एम्पियर। अगर हमने करंट किया 6 वोल्ट तो ये हो गया 6 एम्पियर। तो नाउ यहाँ से अब हम ओम्स लॉ से रिलेशन निकाल सकते हैं। वी नो दैट R इज इक्वल टू V/I। सो यहाँ जब हम R की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, V/I 1 ओम, 4/4 1 ओम, 6/6 1 ओम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो रेजिस्टेंस है ये कांस्टेंट आ रहा है फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वायर, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 1 ओम, और अब इसको अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें, 2 वोल्ट के ऊपर 2 एम्पियर, 4 वोल्ट के ऊपर 4 एम्पियर, एंड 3 वोल्ट के ऊपर 6 वोल्ट के ऊपर 6 एम्पियर करंट। जब इनको हमने ज्वाइन किया तो ये वैल्यूज़ कैसी आ रही हैं, एक स्ट्रेट लाइन में वैल्यूज़ आ रही हैं, और हम किसी भी पॉइंट पर अगर चेक करते हैं, किसी भी पॉइंट पर V की वैल्यू और R की वैल्यू कंसिडर करें और उनको डिवाइड करें इस फॉर्मूले में पुट करके, तो वी सी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी उसको हम ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या होगा, अननोन वायर दिया होगा ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, VI की वैल्यूज हम स्टैब्लिश कर करके उसकी प्लॉट को ग्राफ बनाएंगे, और प्लॉट से हम क्या करेंगे, एक ऑब्जर्वेशन टेबल से कैलकुलेशन करेंगे और रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेक करेंगे, एंड यू विल सी द ब्यूटी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट दैट जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो ऑलमोस्ट बराबर आएगी, मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल टर्न आउट टू बी अ कांस्टेंट। So this was the Ohm's law. Now we will discuss about another concept, that is current density. Current density. What do you mean by density? डेंसिटी का मतलब होता है किसी एक गिवन वॉल्यूम में या किसी गिवन एरिया में कितनी चीज़ें प्रेजेंट हैं उसको बोलते हैं डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि एक गिवन एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है या कितना करंट प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी मीन्स करंट
in a given area. Current per unit area gives us current density which is denoted by capital J. Capital J और small j. Small j कर लेते हैं, बुक्स में कन्वेंशन से small j है, तो let's do it as small j. तो current density means current per unit area. What will be its SI unit? SI unit will be, इसकी SI unit क्या होती है? एम्पियर. एरिया की SI unit एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. This will be SI unit of current density. Now we'll study conductance. छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, 1 मार्क और 2 मार्क के एग्जाम में आते हैं, तो बस इनको हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं. कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल सिंबल G. कंडक्टेंस का मतलब होता है कि एक गिवन कंडक्टर में किस करंट को फ्लो कराने की कितनी एबिलिटी है उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस. द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू अलाउ द करंट थ्रू इट इज नोन एज कंडक्टेंस. और इसको थोड़ा सा अगर हम रेजिस्टेंस के साथ रिलेट करें तो हम बोल सकते हैं दैट कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू और रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को फ्लो होने से रोकता है. कंडक्टेंस क्या करता है? करंट को फ्लो होने देता है. तो ये हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल और प्रिसाइजली से हम इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल.